I, Vinita Pal, welcomes you all to the live session with our IAS 2020 Ms. Sarjana Yadav. Now let me introduce to our guest speaker by sharing a brief profile of hers. She is an engineering graduate from Delhi Technical University of year 2015. Then she worked in Telecom Regulatory Authority of India as a research officer for almost 3 years. In April 2018, she decided to quit her job and dedicatedly prepare for UPSC Civil Services. 2019 was her first serious attempt with full devotion and preparation. Additionally, let me tell you, she did not join any coaching institute for her preparation. She only relied on her discipline and an honest self-study at her home in Noida. She only joined online test series for the preparation. Now I would like to request our director sir to welcome Ms. Sarjana Yadav. Yeah, warm welcome, Srijna. Thank you, sir. Yeah, warm welcome to you. Thank you for being here with us, and we truly honor your thought of sharing your journey with our students, and definitely the students will get motivated by your words of wisdom. Thank you once again. Thank you. Now I would like to introduce to a person without whom this session won't have been arranged for you guys very easily. Yes, I'm talking about Mr. Arun Gupta. He's a mechanical engineer of 2005 batch and an alumni of Delhi College of Engineering. He's a seasoned professional and has extensive several experience in the field of engineering design. He is currently associated with Siemens Engineering as a senior manager. Power plant sector and has been instrumental in executing key projects across various geographies such as USA, UK, Germany, and Southeast Asia. He is well equipped not only to work but also manage cross-functional teams of several nationalities. Within such a young career, he has 2 patents in the field of steam turbine valves. He has also made notable social contributions and has been associated with various NGOs working in the areas of empowering women, children education, and the list goes on. He is one of the youngest executive council member of DCE or DTU Alumni Association. Now I would like to request our Joint Director Sir, Dr. Manoj Goyal Sir, to welcome Sir in KIET live session. Thank you, Arun. Thank you for being with us. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Now I would like to call Preeti Chitkara ma'am for the welcome session. Amir Khusro once likened Kashmir to the heaven. If there is a paradise upon earth, it is here, it is here, it is here. Here I stand today, proudly proclaiming, if there is academic paradise in India, it is here, it is here, it is here. So KIET Group of Institutions is a place where we constantly strive to reach a pinnacle in the academic world, that our students have a strong platform and a congenial environment to allow them to foster their thoughts and take that leap of success into the professional world. Good afternoon, everyone. Dreams that shine brightly through the eyes serve as a breakthrough in achieving grandeur. These dreams not only prove beacons of hope in the long haul, they even help an individual step up and hit the bull's eye. While it is important to dream, it is equally important to know the prospects of achieving one such dream, the pros and cons it carries, and also that if a dream is viable for one, it does not hold true for all the others as well. It is a pleasure to host you today, Ms. Sarjana Yadav. We hope that you would share with us such cherished memories that will help our audience, yes, our bewildered youth, on the precipice of a new life, facing legends of issues appropriate for their future so that they can make an informed decision. I extend a hearty welcome to you. I even extend a hearty welcome to all in the audience who have snatched out time from their busy schedules to join us and motivate our students.
I welcome Mr. Arun Gupta, our Director Sir, respected Joint Director Sir, the Deans, Head of the Departments and Functional Heads. Hope the session will prove fruitful for all. Thank you for joining. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I would like to request our Director Sir to please address the session. Okay, thank you, Vinita. Firstly, warm welcome once again, Ms. Rijna Yadav, for Thank you, joining sir. us Thank today you. in the evening. It's a formal welcome from the KIT Group of Institutions, Thank you. and thank you. And I would like to mention to all my students who are present here, and like to say that no dream is is like that you cannot achieve it. Today we have one of us only, engineering graduate, 2015-16 batch pass out, and there we are ready to listen to her, who is a IS rank 126. Now, these addresses, what you would be listening from Ms. Yadav, is definitely going to give you an insight on her journey. The challenges. See, what is most important is you have to think big. You have to have a very big targets. It could be the government sector, it could be the private sector. But once you have chosen to reach a particular destination, then the kind of a challenges are same only in whatever path you choose. If you choose to go to a particular institution, suppose you choose to go to the Harvard or to the Oxford, target is there. Suppose you choose to become a IS officer or IPS officer, the target is there. The roadmap could be different, the challenges would be there, but definitely there are going to be ups and downs. How well you overcome these ups and downs, that is extremely important. And that is where the journey of the achievers like Sajna is important for all of us. We need to learn from the challenges. We need to see, if you give up once, it's not very important to fail. It's very important is to learn from the mistakes, from the failures, and then rise again and then move forward. Now, that is extremely important, and I'm sure, Sajna, with your experience, our students are going to get immensely benefited. And you never know that any message of yours or anything of yours, it catches the attention of our students. And they also probably, about 5 years hence or 10 years hence, they are also invited to the institution as an alumni to talk about their journey to become an IS officer or IPS officer. So thank you once again for being here with us. And I will only say that KIT Group of Institution is a jewel in Delhi NCR, which has got the best of the students who come to the institution purely on merit. And we have the students who want to prove themselves. And large number of them, they want to join the government services. So your talk definitely is going to inspire a lot of them. And definitely we would again bother you again and again to come and share your experiences as you grow in service. Sir. And yeah, and definitely our students will be benefited. We would like to have a long association. I also Definitely. just take 30 more seconds to welcome my dear friend Arun Gupta ji. He is a man who has got so much of talents with him. The man whom I can depend on, getting a connect from anybody. And thank you, Arun, for bringing such illustrious people on board to the institution. And definitely with your efforts, we are definitely going to be benefited. And the success of our institution, the success stories of our students, to some extent, you have also got a great contribution, because I find that number of such eminent personalities talk have been organized by you in the institution last about 3 years' time. Thank you once again, Arun, for you, and our best wishes to you also for your journey. In any association, in any capacity, our institution is able to help you in any form. It would be our pleasure. Thank you both. And now I think I will not take much time. I think all audience would be very keenly looking forward to hear to Srajna. And yeah, over to you, Srajna, for Thank your you, words sir. of wisdom. Thank you. Thank you, sir. First of all, I want to thank KIT institutions, the esteemed members, and all the students for having me here and giving me this opportunity to interact with you all. I would be really glad if my strategy could help any of the aspiring minds of this institution in any way, even the smallest way.
So thank you so much. I'm truly honored and humbled to be a part of this webinar. Now I would like to start by giving a brief background about myself. Uh, I am Sarjana Yadav. I am an engineering graduate from Delhi Technological University. I graduated in the year 2015, and then I worked in Telecom Regulatory Authority of India for almost 3 years as a research officer. Then in 2018, I decided to work upon my dream and achieve it, and hence I quit my job and started full-time preparation for this examination. Then I gave my examination in 2019, and I cleared it with a rank of 126 with the grace of Almighty and my family, my friends, and everybody. Now, talking about my journey, I would first start with my inspiration, because it's really important to have an inspiration or motivation to achieve your dream. So, जब मैं छोटी थी तो कोई भी मुझसे कोई भी बड़ा पूछता था कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है. एंड इसका प्राइमरी मोटिवेशन आया था फ्रॉम माय फादर. So as I was saying, कि हमेशा से inspiration था from my father, but then as the education progressed and when you reach especially 11th 12th class, you have to choose between 3: humanities, commerce, or science. So I chose science, and science के बाद at our time there was not such a wide kind of awareness about multiple options. तब होता था कि या तो आप engineer बनो या doctor बनो science लेके. So वही ट्रेंड, वही नॉर्म जो सोसाइटी ने सेट किया था, आई फॉलोड एंड आई डिड इंजीनियरिंग. But then when I started working as a research officer in TRAI, there I got the opportunity and exposure to work with senior level officers. Like I worked with IS officers, IRS officers, and from engineering service. So by being a part of those meetings and random conversations, I somewhat got motivated that maybe I could contribute more to the society. I was always inclined towards it, but एक motivation चाहिए होता है, एक kick चाहिए होता है, एक push चाहिए होता है to towards your dreams. So I think that my experience in TRAI made up my mind that okay, if I have it in myself, if I'm confident about it, then maybe I could use my capabilities to serve the society in a bigger way, in a better way. So hence I decided, and see, it was not easy for me to quit a government job, because we all know that government job is very secure, and the work-life balance is good. So it was a very big risk and a very big decision for me. But I had the confidence in myself, in my dream, and my parents, my friends, everybody supported me. So yes, I pursued my dream. The journey is extremely tough. I would lie if I tell that it's an easy journey. No, it's not at all. हर तीसरे दिन आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, especially जब आप टेस्ट देने लगोगे और ये सब, तो तब आपको लगेगा कि maybe it's not my cup of tea. But then you have to tell yourself कि that is the only cup of tea I want. I have no other option. Just set it in your mind. So I had set that in my mind कि करना है तो बस करना है. So I think you need to be courageous to face your fears, और आपको हिम्मत रखनी है, confidence रखना है, consistency रखना है to achieve your dream. So consistency, confidence, and courage, I think, are the 3 C's which would sum up my journey, 1.5 years of journey. So thank you guys. I hope कि जो भी मैं आगे आपको strategy बताऊं, वो आपके किसी भी वे में अगर काम आ सके, तो I would be really, really glad. Thank you, ma'am. Now we can discuss those questions which I have from students' point of view. Yeah. So Definitely. First question goes from Tanya Bajaj from EN department, 3rd year. She might be in the mid of making a decision for preparation. So she has asked, what is the advantage of this exam over multinational companies?
See, multinational companies and a government high-level bureaucratic job, they are two very different things. In a multinational company, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो एक प्राइवेट जॉब है, ये एक गवर्नमेंट जॉब है. और मल्टीनेशनल कंपनी में ये होगा, सपोज यू आर वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, से सेल्स डिपार्टमेंट, देन यू विल बी डूइंग ओनली सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब. बट अगर आप एक ब्यूरोक्रेसी में जाते हो, यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, देन जो डाइवर्सिटी आपको मिलती है, you have to work with women issues, education issues, disaster management. So you need to work on a 360-degree platform. तो जो उसकी diversity आपको मिलेगी वो unmatchable है. That no other job in India provides. The kind of diversity a bureaucratic job gets. Then of course आपको, अगर आप एक bureaucrat हो, you have the powers, you have the responsibilities as well, you have the authority to be a part of the decision making. You will be part of ground level work. जैसे कि हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने, तो आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करिएगा. As an administrator, you will be the one who will be implementing that scheme in your district. So I think ये बहुत ही exposure और जो diversity आपको as a bureaucrat मिलेगी वो एकदम ही डिफरेंट होगी. बट एट द सेम टाइम अगर मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें भी आपको एक्सपोजर मिलेगा. यू विल गेट टू टॉक विद हाई लेवल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और उसका भी एक अलग ऑरा है, एक अलग ग्लैमर है. इसका भी है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या इंटरेस्ट, डू व्हाट इंटरेस्ट्स यू, डू व्हाट सूट्स यू. At the end, our decision makes yeah a difference. it's all about your interest and your dreams. So both are good. It depends on your interest. Thank you, ma'am. Next question is from Shyamji Shukla from third year EN itself. Okay. It is that what UPSC really looking for the aspirants, like what kind of person they need to have, like skill set or personality, what So exactly they are searching for. सो यूपीएससी एक सिविल सर्वेंट ढूंढ रहा है. अब सिविल सर्वेंट में जो इसका पहला वर्ड है सिविल, सो आपको एक बहुत ही मतलब सिविल सर्वेंट मीन्स यू नीड टू वर्क विद द पब्लिक, राइट? यू आर द सर्वेंट ऑफ द सिविल पीपल, यू आर द सर्वेंट ऑफ पब्लिक. तो यूपीएससी ये ढूंढ रहा है कि यू शुड बी एन एम्पैथेटिक पर्सन. व्हाट आई मीन बाय दैट कि आप बस सिंपैथाइज ना करो लोगों से कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है. यू नीड टू एम्पैथाइज कि आप अपने आप को उस जगह रख के देखो कि अगर किसी भी स्कूल में ढंग की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को उस बच्चे की जगह रख के देखिए कि अगर आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो रही थी तो आप क्या चाहते गवर्नमेंट से. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे, वो एक्चुअली वो जो ये एक सोच है वो यूपीएससी को चाहिए कि उन्हें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर या और भी कोई सर्विस का सर्वेंट चाहिए जो एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखता हो, बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता हो, हर चीज को 360 डिग्री से देखे, नॉट ओनली वन डायमेंशन. अगर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उसमें आप बहुत ही एक बैलेंस्ड ओपिनियन दीजिए, बहुत प्रोग्रेसिव ओपिनियन दीजिए. एक बहुत ही 360, एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू से आपको हर चीज को अप्रोच करना है ताकि एक डेवलपमेंट हो. ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग, बट डेवलपमेंट में आपका ये होता है कि आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ मैटर्स. तो एक बहुत ही एम्पैथेटिक उनको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, बहुत ही जो हर चीज को बहुत हर जगह हर डायमेंशन से देखता हो. उसके लिए आपको बहुत ही इसलिए यूपीएससी में आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा कि इन लोगों ने एथिक्स का पेपर भी इंट्रोड्यूस किया है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. तो उसका रीजन यही है. तो एथिक्स में आपको यही सब सिखाते हैं कि हाउ टू बी, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें यही सब होता है कि हाउ टू बी एम्पैथेटिक, हाउ टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट और ये सब. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. Okay, thank you, ma'am. Next question is from Pallav Krishna, IT third year. How to prepare for the exam since third year along with the engineering studies, and since you are from mechanical like engineering background, ma'am, so the question is like how to prepare for UPSC together with the engineering. देखिए, अब मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, इंजीनियरिंग के साथ जैसे फुल टाइम अगर मैं कोई भी एवरेज नंबर ऑफ आवर्स देखूं किसी भी यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के, तो वो हर दिन
ऑन एन एवरेज इन अ ईयर 6 से 7 घंटे पढ़ता है हर दिन। बट ऑफ कोर्स आप थर्ड ईयर में हर दिन क्लास कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आई वुड एडवाइज कि आप ये कर सकते हैं कि आप एक अपना एक फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट करें। इफ यू आर प्लानिंग कि फोर्थ ईयर से निकलते ही आप दीजिएगा अपना एग्जाम, तो आप थर्ड ईयर से एक मोमेंटम बिल्डअप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या पता आप फोर्थ थर्ड ईयर से अगर आप स्टार्ट करें मोमेंटम बिल्ड करना, फोर्थ ईयर तक आपका स्टेमिना या इनर्शिया इतना बन जाए कि आप फोर्थ ईयर में यू आर केपेबल ऑफ गिविंग 8 आवर्स, यू नेवर नो, है ना। तो थर्ड ईयर में आई वुड सजेस्ट कि बिल्ड योर मोमेंटम, स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर द हिंदू आप स्टार्ट करिए पढ़ना। क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स को अगर आप ब्लॉग्स पढ़िएगा कुछ पढ़िएगा, सबका कॉमन डाउट होता है कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे अगर आपने अभी से सोच लिया है कि मेरे को यूपीएससी करना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे तो थर्ड ईयर में को एकदम भी कोई भी इरादा नहीं था कि मैं यूपीएससी करूंगी, बट हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अगर थर्ड ईयर में सोचा, इट्स अ वेरी बिग थिंग, सो यूज इट। अगर आपके मन में ऐसा आया है, आप नॉर्मल न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिए, द हिंदू, उसको थरेली पढ़िए। अगर आपको एनसीईआरटीज और एनसीईआरटीज पढ़ना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, नॉर्मल जो 11th 12th क्लास के होते हैं वो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, या आप ऑनलाइन जैसे आर्टिकल्स होते हैं बीबीसी के या डाउन टू अर्थ के, इन सब के पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपका एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो फोर्थ ईयर मतलब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स दे रियलाइज कि अब ये तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं करना है। फिर दे आर लेफ्ट विथ नथिंग, क्योंकि एक प्लान भी उनके पास नहीं होता है। आप यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपके मन में ऐसा आया है, तो यूज इट। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं बना, तो यू कैन ऑलवेज डिसाइड, यू आर वेरी यंग, यू आर जस्ट इन थर्ड ईयर, तो यू कैन डिसाइड कि मे बी यूपीएससी में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप किसी और चीज में, मे बी एमबीए, और अगर आपको जॉब करनी है तो यूज इट। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपका ये थॉट आपके मन में आया है, आप स्टार्ट करिए, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, नॉर्मल आर्टिकल्स पढ़िए, नॉर्मल बेसिक बुक्स पढ़िए। अभी हार्डकोर पढ़ाई करने का आई वुडेंट एडवाइस, फर्स्ट सी कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Thank you, ma'am, for such a detailed explanation. Actually, ma'am, I do have two queries, and that too from second year. One is from second year, one is from third year. So I would like to again put that question so that he can extract that particular answer, because you have already covered the answer, but I would like to repeat that question. Like, the question was that since he is in second year, the student is Spurs from civil engineering, second year itself, like he has completed his first year recently. So he's asking, he's not habitual of studying continuously for 4 or 5 hours without any distractions, and which is very mandate for this exam. So how should he work from now onward? He is getting conscious about training himself. So see, 4-5 घंटे आई थिंक, अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, मैं अगर अपना याद करूं, मैंने जून 2018 में अपना अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैं भी 4-5 घंटे लगातार नहीं पढ़ती थी स्टार्टिंग में। नो, आई थिंक कोई भी नहीं पढ़ता है जो भी No, that I understood. Maybe the student is saying that since his schooling and now in the 1 year in college, he has noticed that he is not able to put number of hours continuously. So what should he do to improve that quality of him? Not exactly for AS, but first of all, he wanted to work whether he will be able to concentrate. What is the strategy he can use to increase the concentration of that? सी, तो मेरा ये मानना है कि कंसंट्रेशन, सी, अगर आपके पास एक जगह, एक ही टेबल पे आपके पास मोबाइल है और आपका बुक है जो आपको पढ़ना है, तो अगर आप मोबाइल को तभी नहीं देखेंगे अगर आपको बुक में इंटरेस्ट आ रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, तो आप ऑब्वियसली वही देखिएगा। तो मेन चीज ये है कि आप अपना इंटरेस्ट जगाइए बुक में। अगर आपसे एक बार में 4-5 घंटे नहीं हो रहा है, डोंट वरी, आप 1 घंटा पढ़िए। आप टाइम देख के 1 घंटा अपना स्टॉप वॉच लेके बोलिए कि मैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा। उस दिन आप उतना ही करिए, और फिर अपना मोबाइल पे आपको जो देखना है देखिए। आप ये अगर ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ता करिएगा, फिर आपको खुद ही अंदर से मोटिवेशन होगा कि अभी 1 घंटा में मैंने एक चैप्टर किया है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, आज मैं 2 घंटे करता हूँ, मेरा मन है पढ़ने का, मैं दूसरा चैप्टर भी कर लूंगा। तो वो आपको अपने आप को इंटरेस्ट करना है, आपको अपना माइंड को कंडीशन करना है उस वे में।
जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि सोशल मीडिया से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैंने कुछ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आप को मतलब डीएक्टिवेट कर दिया था। बिकॉज सी ड्रीम अचीव करने के लिए डू व्हाट ऑल इट टेक्स। तो मैंने व्हाट्सएप वगैरह डिलीट, क्योंकि मुझे पता था कि डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आई डिलीटेड देम। तो अगर आपको अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या अगर आपको मान लीजिए अपने किसी फ्रेंड से बात करके लगता है कि वो मुझे डिमोटिवेट करता है या करती है, तो जस्ट डिस्टेंस योर सेल्फ। आप थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना पड़ेगा इस ड्रीम को अचीव करने के लिए, क्यों? बिकॉज वी ऑल नो, जिन जो भी एग्जाम क्लियर करते हैं, इस जर्नी में आपको बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। आपका मन, आप सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करिएगा। मेरा सोशल मीडिया से डीएक्टिवेट, सी कितने सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो फुल सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और उनका क्लियर हो जाता है, तो वो उनकी वो अलग इंडिविजुअल है। हर इंडिविजुअल अलग होता है। मुझे सूट किया था कि मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था, सो आई डीएक्टिवेटेड दोज थिंग। आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक फ्रेंड्स एंड टॉक्सिक रिलेटिव। तो आपसे जो बन पड़ता है, जो आपको लगता है कि फेयर है, आप प्लीज अपने लिए सोचिए, सेल्फिश होइए, और जो आपको लगता है आप ड्रीम अचीव करने के लिए करिए। तो अगर आपको लगता है कि आप 4-5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे बाहर जाना है, या दोस्तों से बात करनी है, या सोशल मीडिया चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो आप कुछ दिन डिजिटल डिटॉक्स करके देखिए। इफ इट्स वर्किंग, इफ यू आर इंजॉइंग, देन आप वो करिए। तो इसमें कुछ वो मतलब अजूबा नहीं है, ये सब तो हर कोई करता है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 years। इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 years, 1 or 2 years डजंट मैटर। Doesn't matter, आप right, लॉन्ग, ma'am? या Thank you, ma'am. And the next question is from Astitwa IT, third year. He's asking about the books. I'll read out the questions one by one. Everything is या related to the content. It is like, how do we start preparation, or which all books should be preferred? Do all the books are necessary from 6th to 12th of NCRT to be covered for appearing to this exam? ओके। सो एनसीईआरटी सी, एनसीईआरटी इसलिए बोलते हैं, काफी एस्पिरेंट्स और काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो होता है कि आपका एक बेस बन जाए। सी बिकॉज आप जैसे हम आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से एक टच आपका छूटा हुआ होता है सिंस 11th 12th, और फिर इंजीनियरिंग आप करते हैं, तो एक एक जो कनेक्ट होता है विथ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, वो आपका कहीं ना कहीं गायब हो गया होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी, क्योंकि हमने कभी ना कभी 10th वगैरह में तो पढ़ी ही है, तो एक वो दोबारा से दिमाग में आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटीज पढ़ के आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसी से यूपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एनसीईआरटीज मैंने हर सब्जेक्ट की नहीं पढ़ी थी। मैंने जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, पर्टिकुलरली मैंने हिस्ट्री की पढ़ी थी एनसीईआरटी 7th and 8th क्लास की, और मैंने ज्योग्राफी की पढ़ी थी 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटी। हाँ, मैंने साइंस की भी पढ़ी थी 6th to 10th क्लास की, बस। मैंने और सारे सब्जेक्ट से, कुछ लोग पॉलिटी के लिए भी पढ़ते हैं, तो नहीं, पॉलिटी जो एनसीईआरटी जिसमें मुझे फील हुआ कि अच्छा मैटर दिया है, इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एक्चुअली बन सकते हैं, मैंने बस वही पढ़ा था। बट अगेन, अगर आपको जरूरत लगती है कि एनसीईआरटी एक बार देख लूं, अगर आपको जो एक्चुअल यूपीएससी की बुक होती है वो देख के कभी कभी डर लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है फर्स्ट चैप्टर से, तो प्लीज रीड योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज एक्चुअली एक कंफर्ट लेवल जगाने के लिए होते हैं एस्पिरेंट्स में, कि आगे जो आने वाला है, जो एक्चुअल यूपीएससी बुक है, वो इसी का बड़ा वर्जन होगा, तो डोंट बी स्कैर्ड। तो वो एक एक प्रोग्रेशन टाइप होता है टू गेट यू टू द एक्चुअल बुक। तो अगर आपको वो फियर हटाना है, वो कॉन्फिडेंस, एक हल्का एक बेस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो आप एनसीईआरटीज पढ़िए। बट एज सच, अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो एज सच एनसीईआरटी बुक से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जिस स्टैंडर्ड के यूपीएससी पूछता है। बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बेसिक बुक्स पढ़ के, और स्पेशली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम है, और बहुत ही एनसीईआरटी बहुत ही पतली पतली, हम इंजीनियरिंग के इतने मोटे मोटे बुक्स पढ़ते हैं, तो 50-60 पेज की बुक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक आपका पहले से ही अगर बिल्ड हो जाएगा एक बेस, तो इट्स ऑलवेज गुड। नॉलेज कभी वेस्ट तो जाती नहीं है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप जरूर पढ़िए। Okay, ma'am. Thank you, ma'am.
Next question is from Utkarsh Srivastav from EI third year. And he has a very grounded and genuine questions, what I feel. Like he's asking, since I'm an engineering student and interested in UPSC as well, but also I have a pressure from family to get placed because I'm not very much financially stable. That is acceptable. So how much I should prepare for the exam while doing a job, and what should be the very first basic step to start the preparation? Like he must be asking, like while doing a job, how can he prepare? ओके सो इसके लिए, क्योंकि मैं भी जब जॉब में थी तो मैंने भी ऐसा सोचा था, दो मेरे से हुआ नहीं बिकॉज उतना मोटिवेशन नहीं था, सो आई डिड नॉट कंटिन्यू। बट हो सकता है मेरे काफी एस्पिरेंट्स ने इस बार काफी उसने भी सुना होगा कि जॉब के साथ भी दे देते हैं। सो सी, जॉब के साथ अगर आप दे रहे हो तो आपको दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। एक है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है मोटिवेशन। और आपने मोटिवेशन में है तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, और अगर आपसे टाइम मैनेज हो रहा है तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। तो टाइम मैनेज आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप सुबह उठे, सुबह आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे आप सपोज 8 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो आप सुबह उठ जाइए 5:30 या 6 बजे तक, एंड स्टार्ट आप 6 बजे के बाद थोड़ा 2 घंटे पढ़ लीजिए, 1.5 या 2 घंटे जो भी है आप पढ़ लीजिए। और कोई भी सब्जेक्ट है, कोई आपको लाइट सब्जेक्ट या न्यूज़पेपर ही पढ़ना है या करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वो पढ़ लीजिए। फिर आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी ऐसा नहीं होता कि आपको 8 या 8 घंटे पढ़ना होता है, कुछ ना कुछ आप स्नीक कर सकते हो टाइम, है ना। तो आप 1-2 घंटे वहां पे पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपको ऑनलाइन ही कुछ पढ़ना है, वहां पे आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए या करंट अफेयर्स या कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए बुक का, वो पढ़ लीजिए। फिर आप घर आइए, घर पे पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप सपोज 6, 6:30 तक घर आ जाते हैं, तो आप अगर 7-7:30 से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टडी फॉर 11-12 बजे तक आप पढ़िए। और फिर देन ऑन, ये आपका हो गया। तो अगर मैं देखूं तो 4 hours इन द एट नाइट, 1 hour इन द ऑफिस, एंड 1 to 2 hours बिफोर गोइंग टू ऑफिस, तो आपका तो 6-7 घंटे तो हो ही जाएगा। देन किसी किसी दिन नहीं हो पाता है, किसी किसी दिन ऑफिस में लोड होता है काम का या कोई प्रोजेक्ट रिलीज होता है, तो आप एकदम भी नहीं पढ़ पाते, सुबह भी नहीं पढ़ पाते, रात में भी बहुत थक के आ जाते हैं। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। आप वीकेंड स्ट्रेच कर सकते हैं, वीकेंड पे आप 11-12 घंटे पढ़ के उसको कॉम्पेंसेट कर दीजिए। तो ये एक्चुअली मोटिवेशन सी, अगर आपको है कि करना है तो करना है, तो आप टाइम मैनेज कर लोगे। कर लेंगे, तो right? ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आपको बस टाइम मैनेज करना होगा, मन में हमेशा रखना होगा कि मेरे को ये करना है, तो आप अपने आप, यू नो, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। That's all. तो ये इस पे वैलिड होगा। Okay, thank you, ma'am. Next question is from Vishwas Garg, EI third year itself. He's asking, do language matters in IAS interview, or we do have the chance to choose the mode of English or Hindi while या appearing for या interview? यस, जब आप इंटर मेंस जिनका क्लियर होता है, उनको ना एक फॉर्म भरना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें वो क्लियरली पूछते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ इंटरव्यू यू वांट, मोड ऑफ लैंग्वेज। तो उसमें आप या तो इंग्लिश भर सकते हैं या हिंदी भर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज से भी पेपर दिया है, सपोज आपने मेंस जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, देन ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट की अगर आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है तो आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। और वो हिंदी एज सच, यू नो, एकदम हाई फाई वाली हिंदी नहीं होती, नॉर्मल जैसे हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं वैसी ही हिंदी होती है। तो यस यू कैन डेफिनेटली चूज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, irrespective of whether you have chosen English or Hindi while writing the In mains the paper. writing the mains exam. Yeah. Kritika Srivastav from Mechanical Engineering is asking, how should we start, like basic preparation, which is already covered in the previous questions, but she's asking initial days, like not being in engineering or being in a job. She's like, basic step when we can decide that we are going to appear for the particular exam, CST exam, then what should be the strategy for basic preparation or plan for the basic preparation? सी, बेसिक प्रिपरेशन मैंने जैसे स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन के कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। फर्स्ट प्री रिक्विजिट होता है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए। ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इन द सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इस सब्जेक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि यू नो जब आप आगे बुक्स पढ़िएगा, आपका माइंड ऐसा प्रोग्राम हो जाना चाहिए कि आप बुक पढ़ते ही समझ जाएं कि अच्छा ये तो इस टॉपिक से आ सकता है।
उस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से आ सकता है जो सिलेबस में लिखा था। तो आप बी थरो विद द सिलेबस स्टार्टिंग में, बोथ प्रीलिम सिलेबस एंड मेन सिलेबस। सेकेंडली आप सैम्पल क्वेश्चंस देखिए और प्रीवियस ईयर्स। तो मैं एडवाइस करूंगी, अरिहंत पब्लिकेशंस की आती है प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चंस लास्ट 15 ईयर्स की। तो उसमें क्या है, उसमें ईयर वाइज नहीं होता है, उसमें टॉपिक वाइज होता है। तो टॉपिक वाइज आपको वेरियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उससे क्या होता है, अगर आपने एक सब्जेक्ट, मान लीजिए एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ा है, तो आप उससे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये दोनों प्री रिक्विजिट्स हैं कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप पहले देखिए कि सिलेबस क्या है और सैंपल क्वेश्चंस देखिए। तो उससे आपका एक इनर्शिया बिल्डअप होगा कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और मुझे ये सिलेबस में है, तो मुझे ये चीजें पढ़नी है। उससे एक इनर्शिया बिल्डअप होता है। उसके बाद आप अपना पूरा टाइम, हर दिन का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि मुझे आज ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, एंड मेक श्योर दैट बिफोर यू गो टू द बेड आपके वो टारगेट्स कंप्लीट हो। अगर किसी वजह से टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, डोंट पैनिक। अगले दिन आप 1-2 घंटे और पढ़ के अपने जो पुराने टारगेट्स है वो पूरा करिए। सो बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन। आप हर दिन का अपना टारगेट बताइए, छोटे छोटे टारगेट्स बताइए। इस एग्जाम को एक बहुत ही बड़े हवे की तरह मत लीजिए कि ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है इंडिया का, दो इट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। बट आप इसको एक नॉर्मल जो आपका स्कूल एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, कॉलेज एग्जाम होता है, उसी की तरह लीजिए। बिकॉज सी, एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए भी क्लास 10 मार्क्स का एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए ये एग्जाम है। ऑब्वियसली इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और सब कुछ है, बट अगर आप इसको टुकड़ों में पार्ट्स करके पढ़िएगा, इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़िएगा, कूलली पढ़िए इसको, ट्रीटेड लाइक एनी अदर एग्जाम। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही बड़ा एग्जाम समझिएगा, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा कि ये तो इतना बड़ा एग्जाम है, मैं तो इतना कम पढ़ रही हूँ, इतना कूलली पढ़ रही हूँ, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, कूलली पढ़िए विद अ पीसफुल माइंड। कभी कभी अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, टेक अ ब्रेक, कम अप नेक्स्ट डे विद इवन मोर कॉन्फिडेंस। तो ऐसा मैंने भी 365 डेज के 365 डेज नहीं पढ़ा था। कभी कभी मन करता है कि ब्रेक लो, तो उस दिन मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो एक बैलेंस बना के चलिए। जैसे मैंने पहले भी बोला, इसको एकदम ही बहुत ही बड़ी चीज बना के मत चलिए, ट्रीट इट लाइक एनी अदर एग्जाम। तो ही आप कूलली और एक पीसफुल माइंड के साथ पढ़ पाइएगा। हर दिन के अपने टारगेट्स बनाइए, हर दिन के बनाइए, हर वीक के बनाइए, हर महीने के बनाइए, और उसे पूरा करते जाइए। तो बाय द एंड ऑफ द जर्नी आप अगर पीछे देखिएगा तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि मेरी मतलब जो जर्नी है बहुत ही डिसिप्लिन थी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ थी। यू विल बी रियली प्राउड। तो इसको एकदम आराम से कूलली प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इसको एकदम एकदम कुछ बड़ी चीज समझ के मत करिए। इट्स लाइक जस्ट अनदर एग्जाम। Sarjana ma'am, Vinita ma'am, Yes. sorry to interrupt. One of Not the an issue, student ma'am. Karan from EN department is raising his hands to ask some question. Karan, you may unmute yourself and ask the question. Karan from Good EN afternoon, ma'am. department. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन था, मैम मेंस के आंसर को मैम कैसे एक इम्प्रेसिव आंसर बनाया जाए? ठीक है, तो मेंस का आंसर में देखिए, आंसर में 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। फिर आपको इसी फॉर्मेट में करना है हर क्वेश्चन। तो अगर आप बोले इम्प्रेसिव बनाया कैसे जाए, जो भी आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, 2-3 चीजें हैं। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी है, हाउ, व्हेन एंड व्हाई, फर्स्ट आपका एम होना चाहिए कि आप तीनों पार्ट्स एड्रेस करिए, हाउ, व्हेन एंड व्हाई, अपने बॉडी में, अपने इंट्रो में, अपने कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन जो है वो आप इम्प्रेसिव बनाने के लिए यू कैन इंट्रोड्यूस इट विद सम स्टैटिस्टिक्स। मान लीजिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई मेंस का क्वेश्चन मिला है,
तो आप जो भी रिपोर्ट है CME की वो दे सकते हैं कि इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उससे एक एग्जामिनर को लगता है कि ओके, द स्टूडेंट हैज टेकन एफर्ट्स टू रिमेम्बर दो स्टैटिस्टिक, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। फिर दूसरी चीज ये है कि आपका जो आंसर है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ही हैफिजार्ड मैनर में नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है एक दिन में और टाइम भी कम होता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ऐसे पॉइंटर्स में से, मैं अपने आंसर्स पॉइंट फॉर्म में लिखती थी और जो कीवर्ड्स होते थे मैं उसको हाईलाइट करती थी, ताकि एग्जामिनर को जो कीवर्ड्स हैं वो दिख जाए, तो वो एक अच्छा, एक नीटनेस भी शो करता है। फिर उसके बाद जो आपका कंक्लूजन होता है या वे फॉरवर्ड होता है, उसमें आप कोशिश करिए कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पिक्चर दिखाइए। जैसे कि मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट पे आपका मेंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस पूछे हैं और प्रॉब्लम्स पूछे हैं, तो वो तो आपने इंट्रो बॉडी में लिख दिया। फिर कंक्लूजन में आप एक प्रोग्रेसिव पिक्चर दीजिए कि दो अनएम्प्लॉयमेंट है बट द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद स्कीम्स और एनीथिंग लाइक दैट, और ये इम्प्रूव हो सकता है। तो उससे फिर एग्जामिनर को लगता है कि कैंडिडेट ने सिर्फ क्वेश्चन जो दिया था वही एड्रेस नहीं किया, उससे आगे भी सोचा है। तो वो आप एक एडिशनल चीज भी आपने सोची है, तो वो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। फिर और आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर क्वेश्चन में बनता है तो आप फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं, वेन डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, टेबल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने काफी, और इससे क्या होता है, ये सब यूज करने से क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है। आप लिखने के बजाय अगर आप ड्राइंग या मतलब फ्लो चार्ट्स बना के या वेन डायग्राम्स बना के करते हैं, तो वो अच्छा लगता है एग्जामिनर को, कि उन्होंने अगर मान लीजिए 10 कॉपीज चेक की हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर उनको आपका कॉपी मिलता है जिसमें फ्लो चार्ट्स हैं, ये है, तो वो एक क्रिएटिविटी भी शो करता है, वो एक स्मार्टनेस भी शो करता है। सो इट्स अ गुड थिंग। फिर अगर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछा है कि आयरन ओर्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मैप बनाए जाते हैं, तो आप एक छोटा सा वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो आप पहले से प्रैक्टिस करिए मैप्स ड्रॉ करना, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है कि आपने 1-2 मिनट में पूरा वर्ल्ड मैप बनाया, वहां पे लोकेशंस मार्क की कि आयरन ओर यहाँ यहाँ मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप इम्प्रेसिव बना सकते हैं। बट अगेन, अगर आपका कंटेंट ही मतलब कंटेंट में ही कोई दम नहीं है, अगर आप ऐसी ही बस ड्राइंग बना रहे हैं विदाउट एनी कंटेंट, तो उससे बीटिंग अराउंड द बुश वोंट फेच एनी मार्क्स। अगर आपके पास कंटेंट है तभी आप ये सब क्रिएटिविटी शो करिए। अदरवाइज अगर आप सिंपल वे में भी अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो इट विल ऑल्सो फेच यू द सेम मार्क्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, उसी को अगर आप पहले से अगर आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स इंक्रीज कर सकते हैं, देन नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी काफी। Thank you, ma'am. Now the next question is from Prashant, civil second year. He's asking, ma'am, Thank you, which ma'am. one is good? Ma'am, Which one is good for? Ma'am, my second question is कि मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट का, सॉरी, यस करण। मैम माय सेकंड क्वेश्चन इज मैम ऑप्शनल मैम कैसे चूज किया जाए मैम, उसकी मैम कैसे मैम स्ट्रेटजी बनाई जाए मैम ऑप्शनल चूज करने के लिए मैम। ठीक है, तो ऑप्शनल चूज करने के लिए करण, आप सबसे पहले सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसका आप ऑप्शनल का सिलेबस देखिए। जब आप देखिएगा ईच, आप मतलब बहुत कंसंट्रेशन से पढ़िए। जब आप कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, आप, आई गारंटी यू कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स तो पिकअप कर ही लोगे, क्योंकि एक प्राइमा फेसी भी आपको समझ आ जाता है कि ये डुएबल है, टॉपिक के नाम से। जैसे मैं अपने केस में, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मेरा तो एकदम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरे को तो कुछ था, मतलब मेरे लिए तो सारे ऑप्शनल सेम ही लग रहे थे मुझे। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारे ऑप्शनल्स के सिलेबस पढ़े थे और मैं पढ़ते गई। तो जब मैंने सारा पढ़ लिया, उसके बाद मैंने ऑटोमेटिकली प्राइमा फेसी देख के, टॉपिक्स वगैरह देख के, मैंने 3 सब्जेक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर दिया, एंड दोज वर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिर मैंने तीनों करे क्योंकि मुझे तीनों के लग रहा था कि ये ना डुएबल है, इनके जो भी टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। फिर मैंने एक एक करके, जैसे सोशियोलॉजी है, उसमें जो मुझे थोड़े से जो टफ टॉपिक्स लग रहे थे, उसका मैंने रैंडमली गूगल किया कि क्या क्या बुक्स पढ़नी होती है उसकी, और मैंने स्टार्टिंग के थोड़ा बहुत पढ़ा।
तो फिर मुझे लगा कि जैसे मैंने एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो एंथ्रोपोलॉजी तो मुझसे नहीं होगा। उसमें जो भी फिजिक्स वाला जो पार्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी में, ह्यूमन वाला, तो मैंने बोला कि ये तो मेरे से नहीं होगा, तो एंथ्रोपोलॉजी मैंने कट कर दिया। फिर मेरा बचा सोशियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिर मैंने मैथमेटिक्स का देखा, तो मैथमेटिक्स का भी मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके कुछ कुछ आंसर्स भी होते हैं आपके कोचिंग वाले वेबसाइट्स के और ये सब। फिर मुझे लगा कि ये भी मेरे से नहीं होगा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर पूरे के पूरे गलत हो गए तो उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। तो आई डिड नॉट वांट टू टेक रिस्क। फिर ऐसे करते करते फिर मेरा बचा सिर्फ सोशियोलॉजी। तो आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है, बिकॉज ऑप्शनल चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का होता है। तो और ऑप्शनल में जनरली अगर अच्छा ऑप्शनल, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ऑप्शनल कैन मेक यू टू द लिस्ट और ड्रॉप यू आउट फ्रॉम द लिस्ट। ये ऐसा होता है। तो अगर आपका जनरल स्टडीज के पेपर में थोड़े बहुत कम भी नंबर आ रहे हैं, अच्छे नहीं गए, तो यू कैन ऑलवेज कवर इट अप इन ऑप्शनल पेपर और द एसे पेपर। सो ऑप्शन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ही टाइम लेके अपना ऑप्शनल डिसाइड करिए, पैनिक मत हुई, आप गो थ्रू सब सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, सबके सिलेबस से आप गो थ्रू करिए। प्राइमर आप अपना रिसर्च करिए, जो भी बेसिक बुक, जैसे मैंने सोशियोलॉजी की, जब मैंने सोशियोलॉजी चूज कर लिया, उसके बाद मैंने उसके बेसिक बुक्स पढ़े, जैसे एनसीईआरटीज की, जो एनसीईआरटी जो होती है 11th-12th की, तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, सोशियोलॉजी तो डुएबल है, तो मैंने वही चूज किया। फिर एक मैं आपको कैवियाट बताना चाहूंगी, बहुत से एस्पिरेंट्स ये करते हैं, कोचिंग वेबसाइट्स काफी सक्सेस रेट्स निकाल के आते हैं कि इस सब्जेक्ट का ये सक्सेस रेट है, इस सब्जेक्ट का वो सक्सेस रेट है, इसमें इतने कम बच्चे रहते हैं। प्लीज मेरा ये एडवाइस होगा, प्लीज डोंट बिलीव इन ऑल दोज प्रोपागैंडास। वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पता होगा तो ज्योग्राफी को जनरली लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी बहुत ही खराब ऑप्शनल है, उसमें नंबर नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। बट अगर आप इस साल देखेंगे तो जो भी टॉप 50 में एक लोग हैं जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो सी यू आर फाइटिंग जस्ट फॉर 1 सीट। अगर आपको इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में और अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो आप करो। किसी और जिन्होंने भी लिया होगा ज्योग्राफी और उन्होंने लिस्ट में नहीं आ पाए होंगे, कि तो मे भी उन्होंने मेहनत नहीं की होगी या उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। आप वही करिए जो आपको इंटरेस्ट करता है, सूट करता है, और जो आपका माइंड और हार्ट दोनों बोलता है कि ये मैं कर लूंगा। तो डोंट गो बाय दो सक्सेस रेट्स। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो रहा है आप प्लीज वही करिए, क्योंकि अगर आप सक्सेस रेट के पीछे भागिएगा, तो अगर आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू दोज कोचिंग वेबसाइट, तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब के कंपैरेटिवली हाई सक्सेस रेट्स हैं। बट अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया सोशियोलॉजी में, तो आप सक्सेस रेट का क्या करिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं। कोचिंग वेबसाइट के कह देने से आपका भी सक्सेस रेट वैसा नहीं हो जाएगा ना। आपको जो इंटरेस्ट आता है आप वही करिए। तो उसके लिए आप अपना रिसर्च करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपना ऑप्शनल चूज करिए। Ma'am, my third question is, ma'am, I prepare in Hindi medium. Karan, wait a minute. There are few questions. Let me finish off them, and then we'll have a live session where you can directly ask to ma'am. Everybody is waiting over there. Let me finish these of the questions. 3-4 questions are there, right, Karan? You can wait with your 2 questions. Next question is from ma'am Prashant from Civil Engineering, 2nd year. He's asking, since you are in engineering, you have an administrator now with an engineering background. So what will be the good on the preparation basis? Is it IAS or IES on preparation basis? What will be better for him or anybody to choose? Having an engineering background. सी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आप प्रिपरेशन वाइज देखें या कि आपको, क्योंकि अगर आप सपोज प्रशांत इज अ सिविल इंजीनियर, तो उन्होंने सिविल के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो वो उस फाइनल ईयर से निकल के भी डायरेक्ट ही कैन गिव दैट एग्जाम। बट अगेन सी इट ऑल, अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस देखिए और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखिए, तो ऑनेस्टली देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस in the kind of responsibilities and power and authority which an IES has and which an IAS has. IAS is obviously the top government job in India. तो वो एक है। See, it all depends on the interest. अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस में करना है, अगर आपको सपोज प्रशांत इज अ सिविल इंजीनियर, तो
अगर उसको इंटरेस्ट है कि उसको फील्ड लेवल जॉब्स करने हैं या फिर सब्जेक्ट में ही काम करना है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, देन चूज दैट। लेकिन अगर आपको आपको अपने फील्ड से अलग करना है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ जॉब करनी है, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना है अपने कंट्री के लिए, देन चूज दैट। प्रिपरेशन में सी कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट्स IES, IAS, कैट, गेट, हर में आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी एग्जाम विदाउट मेहनत किए तो नहीं निकलता है। बट हाँ, अगर आप प्रिपेयर करने की बात करें तो ऑब्वियसली IES के भी जो भी सब्जेक्ट है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ देम। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ देम एंड यू हैव स्टडीड इन द कॉलेज तो आपका निकल ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि नहीं निकलेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। आपको इंजीनियर, आपको अगर आप IES बनते हैं तो आपको उसी में सिविल वाली जॉब ही करनी पड़ेगी। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज, इट्स अ वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो करिए। अगर आपको AS में इंटरेस्ट है तो थोड़ा से और मेहनत करके आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ के आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेहनत तो देखिए आपको दोनों में ही करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको ES में ऑलरेडी, क्योंकि सी एग्जाम दो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बट क्वेश्चंस तो उसमें अलग अलग टाइप से ही पूछते हैं, उसका तो आपको प्रिपेयर थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। आंसर राइटिंग, और उसमें प्रीलिम्स भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो उन सबका आपको देखना ही पड़ेगा। बिना पढ़े तो कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कितना टाइम आप दे सकते हैं, आपको कहाँ जाना है लाइफ में। इट ऑल डिपेंड्स। Thank you, ma'am. Now I would like to ask each and everyone, each a student present over here, whether they are from MCA or application, computer application, engineering or B Pharma. You can raise your hand and ask your question. Once you are raising your hand, I'll call your name and then you are supposed to unmute yourself and then you can ask the questions to ma'am. Utkarsh, you can unmute yourself and please go ahead with your question. Okay, next one is. Good evening. Hello. All right. Good evening, ma'am. Go ahead, go ahead. मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने सारे सिलेबस मतलब लगभग सारे सिलेबस को थॉरली रीड किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस देखे थे तो टॉपिक मतलब मैम जैसे मान लीजिए मैम ओम्स लॉ पढ़ रहा हूँ और उसमें टॉपिक में दिया था कि ओम्स लॉ सिलेबस में है, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैम जब मैंने हिस्ट्री वगैरह की NCERT थोड़ी बहुत पढ़ना चालू की तो मुझे लगा हिस्ट्री ज्यादा इजी पड़ेगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर ऑप्शनल के लिए जाए। मैम थोड़ा इस कंफ्यूजन को अगर आप क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इजी पड़ेगा कि हिस्ट्री। सी, अगर आपने जैसा आप बता रहे हैं कि आपने दोनों का सिलेबस पढ़ा, फिर आपने हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ा, तो आपको वो ज्यादा इजी लगा। सी इजी लगना और इंटरेस्ट आना दोनों अलग चीजें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इजी चीज में ही आपको इंटरेस्ट आए, कभी कभी डिफिकल्ट चीज में भी आपको इंटरेस्ट आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि सिलेबस डुएबल है, देन गो फॉर हिस्ट्री। जरूरी नहीं है कि बिकॉज यू आर एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है। बट जनरली जैसे जो इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल वाले बच्चे होते हैं वो जनरली यही सारे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं UPSC में, बिकॉज उनका ये होता है कि उन्होंने पहले इंजीनियरिंग में पढ़ा है, उन्हीं को बस वही सब चीजें रिवाइज करनी है, तो उनका टाइम बचेगा और वो कर लेंगे। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको हिस्ट्री अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, डुएबल लग रहा है, देन व्हाई नॉट, यू कैन ऑलवेज गो फॉर हिस्ट्री। बस ये आप प्रॉपरली डिसाइड करिए। ये नहीं कि 1-2 महीने आपने सारी बुक्स वगैरह खरीद ली हिस्ट्री की, फिर आपको 1 महीने बाद लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं इलेक्ट्रिकल ही कर लेता। तो चूज वाइजली। अगर आपको इलेक्ट्रिकल लग रहा है कि ये तो हो जाएगा, तो आप इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं। वरना अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट लीजिए। कितने बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो ह्यूमैनिटीज वाला ही लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में कंफर्टेबल हो। इजी डिफिकल्ट का तो छोड़िए, बिकॉज UPSC इज नॉट एट ऑल इजी। इजी तो देखिए कुछ भी नहीं है
है ना। अगर आपको लग रहा है सब्जेक्ट इजी है या कुछ है तो दैट्स अ गुड थिंग, मे बी आपने स्ट्रैटेजाइज अच्छे से किया हो। बट इजी एज सच तो कोई भी नहीं होता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप करिएगा तो इजी तो नहीं होगा, आपको खुद उसको इजी बनाना होगा थ्रू थ्रू कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड ऑल। तो आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है आप करिए, आप इसके पीछे मत भागिए कि ये इजी है या ये डिफिकल्ट है। इजी मतलब सब सेम ही होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए सपोज मैं बताती हूँ, अगर एग्जाम में आपका कोई ऑप्शनल इजी भी आ जाता है, सपोज इस बार मैं अगर अपना अपना बताऊं तो जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, उसका बच्चे जिनका भी ऑप्शनल था, दे वर सेइंग कि उनका पेपर इजी आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, बट ऐसा नहीं, फिर ऐसा ही होता है। अगर 10 ऑप्शनल्स हैं तो यूपीएससी उस साल 5 ऑप्शनल इजी बनाती है, 5 ऑप्शनल डिफिकल्ट बनाती है, बट एट द एंड वो एक नॉर्मलाइजेशन भी करती है मार्क्स का। तो जो इजी वाले होते हैं उसमें ऑब्वियसली उनको ज्यादा नंबर मिले होंगे, तो उनके थोड़े से नंबर डाउन हो जाते हैं ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, और जो डिफिकल्ट वाले होते हैं उनके थोड़े से अप हो जाते हैं ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। तो यूपीएससी टेक्स केयर इन द चेकिंग की सबको अपने प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिले टू द डिफिकल्टी। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज अपने इंटरेस्ट पे जाइए कि आपको क्या इंटरेस्ट कर रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल नहीं इंटरेस्ट कर रहा है देन डोंट गो फॉर इट, गो फॉर हिस्ट्री, इट्स योर कॉल। I think you are done, Utkarsh. Now next one is Nancy. Nancy, you can go ahead with your question. Unmute yourself. ओके, थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि मैं एक्चुअली गूगल सर्च कर रही थी तो उसमें ये दे रखा था कि जैसे हम लोग गेट का पेपर 4th ईयर में दे सकते हैं, तो क्या हम यूपीएससी का भी पेपर 4th ईयर में दे सकते हैं? आई थिंक 21 ईयर्स है लिमिट, मतलब मिनिमम एज वो देने के लिए। तो इट डिपेंड्स कि आप 21 ईयर्स की अगर हो गई हैं आफ्टर 4th ईयर तो यू कैन गिव इट डेफिनेटली। तो इट ओके, ऑल थैंक डिपेंड्स यू कि मैम। आपका एज क्या है। हाँ, Next, Sumit, you can unmute yourself. Sumit. Yes, ma'am. Good evening to one and all present here. Ma'am, my question is that, ma'am, how can you prepare for IAS while pursuing BTech फॉर parallelly? मैम आईएएस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? मैम अभी मैं सेकेंड ईयर में, मैम इसी स्टूडेंट का इसी डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट हूँ। तो मैम कैसे अपना टाइम टेबल, मैम मैंने अपना सारी स्ट्रेटेजी और ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी मैम प्रिपेयर करके रखी हुई है। मैम मेरा टाइम टेबल डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैम मैं कैसे मैनेज कर अभी पाऊँ, आप हैंडल कर सेकेंड ईयर पाऊँ। में? यस मैम। हाँ, तो देखिए, आप सेकेंड ईयर में तो आप 4th ईयर के पहले तो एग्जाम दे नहीं सकते हैं, सो यू हैव 2 full years before, 2 years, yes मैम, 2.5 yes years मैम, before you give your exam। तो आपके पास you have a lot of time। तो आप यस मैम। अभी अगर आप कह रहे हैं कि आपने टाइम टेबल वगैरह बना दिया है तो अभी गो इजी। आप सेकेंड अगर अभी हैं तो अभी आप बेसिक से, जैसे एक और भी पहले बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया था, आप बेसिक से स्टार्ट करिए। जैसे आप न्यूज़पेपर रेगुलर कर दीजिए पढ़ना, ऑनलाइन आप आर्टिकल्स पढ़िए, जैसे बीबीसी के आर्टिकल्स हो गए या down2earth.org है, उसमें इन्वायरमेंट के अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, अब वो पढ़िए। एनसीईआरटीज पढ़िए, एक फाउंडेशन बिल्डअप कर लीजिए। फिर क्या होगा, आपका एक इनर्शिया भी बिल्डअप हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि नहीं है यूपीएससी में, बिकॉज इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। कितने लोग होते हैं कि 4th ईयर के बाद उनको ऑप्शंस कम पड़ जाते हैं कि हमने तो इतने साल कुछ किया नहीं, अब क्या करें, यूपीएससी करें कि जॉब करें। तो अगर आप अभी से सोच रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, यूज दिस अपॉर्चुनिटी। आप बेसिक्स अपना टाइम टेबल जो है उसमें ये सब इंक्लूड कर लीजिए कि आपको हर दिन न्यूज, क्योंकि अभी तो आपको कॉलेज पे भी ध्यान देना होगा, कॉलेज के सब्जेक्ट्स पे भी। तो यस आप मैम। प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाइए अपने, जैसे अगर आप हर दिन के भी 3-4 घंटे स्मॉल दे स्मॉल पाते हैं। टारगेट्स। हाँ, स्मॉल टारगेट्स बताइए, क्योंकि आप कॉलेज की पढ़ाई भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो तीन यस चार मैम। घंटे 3-4 घंटे आप हर दिन का रखिए कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और छोटे मोटे आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, या एनसीईआरटी जैसे मैंने बोला आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अभी थोड़ा लाइट रखिए, अभी टारगेट्स, प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाइए, क्योंकि यू हैव टू मैनेज बोथ, यू हैव टू मैनेज कॉलेज ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। So my advice would be to set small practical targets every day, और आप हर दिन वही करिए। आपका एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा। फिर आप जब 3rd ईयर जाइएगा तो आप हर दिन
3 घंटे के बजाय मे बी आप 5 घंटे दे रहे हो, फिर 4th ईयर में जाइएगा तो 5 के बजाय 7 घंटे दे रहे हो, तो वो आपका एक मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने प्रिपरेशन से. सो आई थिंक इट विल बी रियली गुड. Next, Sarveshwar, you can unmute yourself. Good evening, ma'am. Good evening. My question is from TRI to UPSC, means working in TRI, and then after UPSC, ma'am, how you changed your mindset, means after doing job, and it was good also. So means how you changed your mind to UPSC. सी जैसे मैंने अपने एड्रेस में ही बोला था कि जब मैं TRAI में थी एज अ रिसर्च ऑफिसर्स, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो मेरा हर दिन की मीटिंग्स होती थी विद IAS ऑफिसर्स, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स और इन लोगों के साथ. तो जब मैं इनको देखती थी, मीटिंग्स में जाती थी, तो वो डिसीजन लेवल मेकिंग डिसीजन लेवल पे वो लोग काम करते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. जब भी हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते थे या कुछ, जैसे मेरा रिसर्च ऑफिसर का काम था, तो आई यूज्ड टू ड्राफ्ट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स. तो ये लोग मतलब मेरे को अपना टिप्स देते थे, जो भी एडवाइजर्स होते थे, जो भी IAS ऑफिसर्स होते थे. तो उनके जो एडवाइजर्स होते थे वो बहुत ही होलिस्टिक होते थे. वो जैसे हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग एक पर्सपेक्टिव से सोचते थे, बट उनका जो व्यू पॉइंट होता था बहुत ही होलिस्टिक होता था. वो सोशल एस्पेक्ट भी देखेंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी देखेंगे. तो वो जो रेंज था वो अमेजिंग था. तो वो एक्चुअली मुझे काफी इंस्पायर किया कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना है. धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जागा, धीरे धीरे मेरा माइंड सेट भी वैसा हो गया कि मैं भी 360 डिग्री से सोचने लगी. जब मैंने फर्दर रिसर्च पेपर्स ड्राफ्ट किए, तो एक इंटरेस्ट जागा. जब मैं उनसे बात करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे भी ऐसे एक सिस्टम का पार्ट होना है जिसमें आई कुड बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन लेवल मेकर्स, और मैं भी ग्राउंड लेवल काम कर पाऊँ. मैं कुछ ऐसा काम कर पाऊँ जो एक्चुअली विजिबल चेंजेस शो करे, rather than sitting in the office and मतलब, क्योंकि देखिए अगर एज अ रिसर्च ऑफिसर अगर मैं होती तो इतना मैं ग्राउंड लेवल पे तो काम नहीं कर पाती. लाइक आई एम डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द पब्लिक, डायरेक्टली आई एम इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो ये बहुत ही एक वाइब्रेंट, बहुत ही डाइवर्स काइंड ऑफ जॉब है एक एडमिनिस्ट्रेटर का, विच अट्रैक्टेड मी. सो हेंस आई चोज कि ठीक है, मैं अगर मुझे अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज को और अच्छे से एक बिगर प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकती हूँ, अपने सोसाइटी को सर्व कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट. यू हैव वन लाइफ, सो डू इट ऑल. So yes. मैम, one more question. Yes. मैम, जैसे पॉलिटिकल अप्रोच, मैम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिटिकल अप्रोच भी होते हैं मैम. तो हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैम पॉलिटिकल अप्रोच को भी मतलब माइंड में लेके चलें? नो, नॉट एट ऑल. यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल. आप एकदम भी मत पढ़िए जैसे कि सपोज पॉलिटिकल अगर न्यूज आर्टिकल आया है, जैसे हमारा अभी केस था CA और NRC का, तो उसमें आता था कि पॉलिटिकल पार्टी A ये कह रही है, पॉलिटिकल पार्टी B ये कह रही है, Z ये कह रही है. तो ये सब एकदम भी नहीं. एडमिनिस्ट्रेटर्स आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. तो आप कोई भी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट अप्रोच मत रखिए आंसर्स में. दैट इज अ बिग नो. आप प्लीज पॉलिटिकल न्यूट्रल रहिए. जज समथिंग बेस्ड ओनली ऑन फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक, और बस इसी से आप जज करिए. किसी भी, जैसे कि मान लीजिए इफ यू आर अट्रैक्टेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी A, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी की आइडियोलॉजी अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करिए. ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. आप किसी भी क्वेश्चन को बेस्ड प्योरली ऑन लॉज, जो भी आप लॉ पढ़िएगा अपने सब्जेक्ट्स में, और ये सब बेस्ड ऑन रेगुलेशंस, ये वो जो भी स्कीम है, जो भी फैक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स है, आप बस वो पुटअप करिए. बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपको आंसर लिखना है. अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि जिसमें आपको बोलना है कि आप क्रिटिकल व्यू दीजिए, तो क्रिटिकल व्यू का मतलब ये नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज करिए. क्रिटिकल व्यू का मतलब ये है कि आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताइए, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताइए अपने हिसाब से,
किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं। तो अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे आइडियोलॉजिकली टिल्टेड हैं तो अभी से अपने आप को संभाल लीजिए। बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, जज एनीथिंग जस्ट बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिक, बी रैशनल, क्योंकि ये सब आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस ये थोड़ा इरेशनल चीजें होती हैं। तो अगर आपका है ऐसा कुछ तो आप पॉलिटिकली न्यूट्रल सोचना स्टार्ट करिए। मैम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा तो कोई बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है ना? नहीं, बस आप लक्ष्मीकांत ही इतनी बड़ी बुक होती है, उसके अलावा आपको यस पढ़ने मैम, का टाइम ही नहीं मिलेगा। और यस करंट मैम। अफेयर्स डेफिनेटली, हर मैम चीज हर करंट सब। अफेयर्स मैम करंट अफेयर्स से लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर इन टोटल माना सी जाए तो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, आप ये नंबर्स पे मत जाइए। कभी भी कुछ भी आ जाता है, स्टैटिक भी आ जाता है और करंट अफेयर्स भी बात आ जाता है। जैसे मैं अगर 2019 प्रीलिम्स की बात करूं तो साथ सब लोग का यही मानना था कि यूपीएससी अगेन स्टैटिक ज्यादा देने लग गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप दोनों उतने ही शिद्दत से प्रिपेयर करिए, बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक्चुअली थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है स्टैटिक से, क्योंकि स्टैटिक के लिए तो ऑलरेडी बुक्स आपके चलते आ रहे हैं सालों साल से, तो वही पढ़ना है आपको। यस मैम, करंट अफेयर्स ये कि एक नया एलिमेंट है वो, और करंट अफेयर्स के लिए मटेरियल बहुत ज्यादा है ऑनलाइन। ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है, वो भी देता है, सब देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे सही चीज मिलेगी, कहाँ पे यूपीएससी लेवल चीजें मिलेंगी। तो इसलिए करंट अफेयर्स लोग ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट, बट जो उसके साथ चीजें रिलेटेड होती हैं कि कहाँ से हमें उसको प्रोक्योर करें और कैसे पढ़ें और ये सब। तो वो है, बट आप दोनों प्रिपेयर करिए, स्टैटिक भी करिए, करंट भी अफेयर्स करिए। ये इस इम्प्रेशन में मत रहिए कि करंट अफेयर्स ज्यादा आता है स्टैटिक से। यूपीएससी कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, वो उसका यूएसपी है। तो आप दोनों ही अच्छे से ही प्रिपेयर करिए। मैम जैसे अभी तो मुझे 4th ईयर में देना है, मतलब 4th ईयर के बाद दूंगा, तो उस स्टैटिक का भी प्रिपेयर कर रहे हैं मैम। तो करंट अफेयर जैसे अभी के टाइम का तो नेसेसरी नहीं है उतना? हाँ, ये अभी के टाइम का मतलब अभी के करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेंगे डेफिनेटली तभी। बट आप करंट अफेयर्स जैसे कि आप न्यूज़पेपर तो बट एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यस मैम, है ना? क्योंकि अभी जो स्कीम निकलेगी ऐसा तो नहीं है कि 2 साल में खत्म हो जाएगी। कोई भी स्कीम एटलीस्ट 5 साल की तो होती है। इट्स बेटर कि आपको पहले से ही पता हो। बट हाँ, ये तो है कि अभी का करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली नहीं पूछेंगे 2 साल बाद। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक मोमेंटम बिल्ड करना स्टार्ट करिए, न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ के, अगर आप कोचिंग वाला नहीं भी पढ़ रहे हैं तो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Ma'am, though we are reaching timelines, but if you permit, we can have 2-3 more questions. Yeah, definitely. Okay, ma'am. Next, Prashant, you can unmute yourself. Prashant. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर हम एग्जॉस्ट अपने आप को कभी फील करें तो फिर कैसे मोटिवेट रखें फिर अपने आप को? देखिए, जब मैं बहुत ही एग्जॉस्टेड फील हो जाती थी, जब मेरे कभी कभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ जाते थे या कुछ था, तो मैं तभी पढ़ाई स्टॉप कर देती थी। आई यूज टू, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम देती थी कि मैं एब्जॉर्ब कर पाऊँ कि हुआ क्या है। तो मैं उस दिन जैसे कि सपोज मैंने सुबह टेस्ट दिया, ठीक है, और मेरे कम नंबर आ गए और मैं एकदम डीमोटिवेट हो गई कि ये है, तो मैं स्टॉप कर देती थी। मैं कभी कुछ कुकिंग कर लेती थी या कुछ कर लेती थी। तो कुकिंग करते टाइम मैं सोचती थी कि मैंने क्या गलती की मॉक टेस्ट में और ये सब। फिर जब मैं एनालाइज करती थी कि इस क्वेश्चन में तो अच्छा मुझे तो याद ही था, मैंने किया नहीं ये वो, तो उस थॉट से ही जब मैं अपने वीकनेसेस को समझ जाती थी कि अच्छा मैं यहाँ पे वीक पड़ गई, मेरा ये वीक पॉइंट है कि मेरा रिवीजन स्ट्रांग नहीं है, तो वो इटसेल्फ मेरे लिए एक मोटिवेशन बन के आ जाता था कि ठीक है, अभी तो ये मेरा वीक पॉइंट था,
तो अभी मैं इसको रिवाइज कर लूंगी, अच्छे से कर लूंगी, तो मेरा आगे अच्छा हो जाएगा। तो मैं फिर वो मोटिवेट हो जाती थी, फिर मैं अगले दिन से फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो ये एक ऐसी एक प्रोसेस है। आपको जो चीज डीमोटिवेट करेगी, उसको अगर आप अच्छे से एनालाइज करिएगा rather देन क्राइंग और रिपेंटिंग, आप बैठिए। क्योंकि सी इट्स ये आपका फाइनल एग्जाम तो है नहीं, ये आपका एक एक बीच का दिन ही है जो आपका खराब जा रहा है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को सुनिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि आप में क्या गलत हो रहा है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे अपने बारे में कि मैं यहाँ स्ट्रांग हूँ, यहाँ वीक हूँ, और अपने आप वीक पॉइंट्स पे काम करने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सपोज आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है और आप डीमोटिवेट हो गए हो, तो जैसे कि मान लीजिए आपको पॉलिटी का कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप डीमोटिवेट हो गए, मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। हाँ, तो फिर आप थोड़ा अपने आप को शांत करिएगा, फिर आप सोचिएगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि मैं फोन देखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई और चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो आप फिर उस पर मेहनत करिएगा। आपने गूगल पे सर्च किया कि पार्लियामेंट क्या होता है, क्या तो वैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। चीजों से भागिए मत, फेस योर वीकनेसेस, वही आपका मोटिवेशन बनेगा। व्हेन यू विल फेस योर वीक पॉइंट्स, व्हेन यू विल फेस योर फियर्स, वो इटसेल्फ आपका मोटिवेशन बनेगा। और ट्रस्ट मी, ऐसा होगा। ये कहने की बात नहीं है। जो भी आप फेलियर्स होते हैं लाइफ में, चाहे वो एक टेस्ट का ही छोटा सा फेलियर हो, वो एक्चुअली आपको मोटिवेट करते हैं, अगर आप उसको अच्छे से यू हैव टू एब्जॉर्ब द फेलियर, कि ठीक है, मैं फेल हुआ हूँ तो हुआ हूँ, क्यों हुआ हूँ। इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द एंड ऑफ जर्नी। आप उस पर काम करिए, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, जब द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस। तो ये है। और रही बात, जैसे आप ये कह रहे हो कि कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने का, कि काफी सैचुरेशन लेवल पॉइंट हो जाता है, तो आप ब्रेक लीजिए। जैसे मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन ब्रेक लेती थी, तो उस दिन मैं न्यूज़पेपर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ती थी। मैं अपना कभी मूवी देख लेती थी, पिज्जा मंगा लेती थी, फ्रेंड्स के साथ चली जाती थी शॉपिंग या कुछ भी। तो मैं एक बैलेंस मेंटेन करके चलती थी कि नहीं पढ़ना है तो बस नहीं पढ़ना है, आज का दिन फ्री, मतलब दिन के बस 2-3 घंटे पढ़े, दैट्स इट। उससे क्या होता है, एक माइंड को, बॉडी को मतलब रिवाइव होती है आपकी बॉडी। तो ऐसा है। और मैं हर दिन की भी बात करूँ तो मैं 24 घंटे तो पढ़ती नहीं थी। तब ऑन एन एवरेज आई यूज्ड टू स्टडी जस्ट फॉर 7-8 आवर्स। बाकी के टाइम में कभी कभी बाहर वॉक पे चली जाती थी, जॉगिंग पे चली जाती थी, गाने सुन लेती थी। तो अगर आप ऐसे बैलेंस मेंटेन करके चलिएगा, तो ये जो आपकी इतनी लंबी और टफ जर्नी है, ये थोड़ा आप अपने लिए इजी बना पाइएगा। तो आप बैलेंस बना के चलिए, तो आपकी ये जर्नी हंसते हंसते कट जाएगी। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Before moving to the last question, I would like to make an announcement that we'll be sharing the feedback form after the end of the session. So the ones who will be filling those forms will be getting the participation certificates. So make sure that you're going to fill it up. Next, Harendra, you can go ahead with your query. Harendra. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मन में हमेशा ये डर रहता है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे दिमाग में ये हमेशा डर बना रहता है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अगर मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ फाइनल होने के बाद। तो इस डर को कैसे दूर किया जाए, और ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए हरेंद्र, ऐसा ये जो आप सोचते हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और नहीं कर पाइएगा, ये एक बहुत ही इरेशनल थॉट है। इसका कोई भी लॉजिकल बेसिस नहीं है। अगर आप जानते हो 2019 बैच के जुनैद अहमद करके जो AIR 3 थे, उनके 10th या 12th क्लास में जस्ट 60% नंबर आए थे, एंड ही इज नाउ अ टॉप रैंकर, अ टॉप IAS ऑफिसर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आप नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली नॉट। हार्ड वर्क कोई भी कर सकता है, और आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बिलीव इन योर हार्ड वर्क। ऐसा एकदम भी मन में मत आने चाहिए कि आप हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पे भी एवरेज रहेंगे। जो आप
जैसे कि मैं समझती हूँ आप ऐसा सोचते होंगे कि जो हमेशा से इंटेलिजेंट रहे हैं उनको एक एज होता है, क्योंकि वो चीजें जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। जो चीजें आपको मान लीजिए 6 घंटे लगती हैं ग्रास्प करने में, या 6 घंटे मतलब लगते हैं, वही किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मे बी 3 घंटे लगे हो, 4 घंटे लगे हो, तो कोई बात नहीं, आप हर दिन 2 घंटे ज्यादा दीजिए। आप सेम चीज पढ़िए आप, लेकिन 2 घंटे ज्यादा दीजिए। मेहनत करने से मत डरिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है कि एक जगह आके स्टॉप हो जाती है, इट इवॉल्व्स। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एवरेज रहें तो आप जिंदगी भर हमेशा एवरेज रहेंगे। अगर अगर हर एवरेज आदमी ऐसा सोचने लग जाए तो कोई इंटेलिजेंट बनेगा ही नहीं। जो जिन लोगों को भी आप इंटेलिजेंट अभी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि दे वर बॉर्न इंटेलिजेंट, दे वर्कड टू गेट दैट टैग, दे वर्कड हार्ड फॉर इट। तो आप भी मेहनत करिए। ऐसा एकदम मत सोचिए कि आप एवरेज है तो नहीं कर पाइएगा, एकदम भी नहीं। आई थिंक बहुत ही कम लोग जो ये एग्जाम क्रैक करते हैं वो बोर्ड टॉपर्स या कॉलेज टॉपर्स रहते हैं। मोस्टली सब सृष्टि देशमुख, इनफैक्ट अगर आप जानते हो, वो भी एज सच कोई कॉलेज टॉपर नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था, बट स्टिल शी इज अ टॉप रैंकर इन 2019 CSC। ऐसा एकदम भी नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, इसका कोई भी बेसिस नहीं है लॉजिकल। आप अपना मेहनत करिए, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, बिलीव इन योर सेल्फ, और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम्स एंड you'll definitely sail through. Thank you very much. Thank you, ma'am. Although we still have a list of questions, but we would like to end it up. Yeah, sure. I have one thing to say. I know a few questions are pending from our students, and they are continuously dropping their please, ma'am. Yes. So I have requested them to drop their questions to the mail ID that I've shared in the chat box, cgckite.18@kiet.edu. And I request you too that once I receive those questions, please answer them in written if that is a possibility. Yeah, so sure. We can, quench their queries, because they are very keen to learn many things from you. And really, I'm finding everybody so enthusiastic over here, and everybody wants to know their answers. So sorry, students, we cannot meet everybody's expectations right now, because we are running short of time. But we'll certainly get you answers to your questions from ma'am. Yeah, definitely. And ma'am is very humble to say yes to our request even. Thank you so much, Sajna ma'am. And students, you can send the mails and you'll get your answers. So don't worry about it. Definitely. Yeah. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Neelam Rawat ma'am to give the vote of thanks. Thank you, Vinita ma'am. Good evening, everybody. It is a great joy for me to extend a vote of thanks to all those who have contributed in one way or the other to make this online session with an IS successful. I'm thankful to all participants for attending this informative session, and I'm sure they must get benefited in the future. My special thanks to our today's speaker, Ms. Sajna Yadav, IS rank holder, for enlightening our students' mind and shown them new path towards lots of opportunities and success. And also thanks to Mr. Arun Gupta for his valuable support in organizing such mindful sessions for our students. I acknowledge the unwavering support received from Career Guidance Center CGC KITE members for their valuable suggestions time to time. I'm also thankful to all functional heads, deans, and head of the departments for accepting our invitation. I thank to Dr. Colonel Agar, Director, KITE Group of Institutions, for his inspiring mentorship and accepting our invitation. I'm also thankful to ITSS KITE Head, Mr. Vinay Elawat Sir, Sant Kumarji, and Madhuren Ji for providing all possible creative and technical supports. Last but not the least, thankful to Dr. Preeti Chitkara for her continuous involvement and support that really helped to make this session possible. Thank you everyone for being so supportive and humble.